This verse is talking about the revival. ये वचन जागृति के बारे में बात करता है। When a nation is looking for revival, जब एक देश जागृति को ढूंढता है, when an individual is looking for revival, जब एक निजी जन एक जागृति को ढूंढ रहा है, God is telling them, परमेश्वर उनसे कह रहा if है, my people, अगर मेरे लोग, not other people, कोई दूसरे लोग नहीं, not the people of the world, दुनिया के लोग नहीं, but God says, if my people, लेकिन परमेश्वर ये कहता है, यदि मेरे लोग which are called by my name, जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, if कहलाते they हैं, shall humble themselves, यदि वो अपने आप को नम्र करें, humbling yourself. अपने आप को नम्र करें, Humbling is very important. नम्र करना बहुत जरूरी है। Removing the pride and ego and humbling ourselves. घमंड अहंकार हटाकर अपने आप को दीन करें। If you do not humble and pray, there is no use. यदि आप दीन होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। In this verse, we see the order of the revival. इस वचन में हम जागृति के क्रम को देखते हैं। First thing, if my people, सबसे पहली बात, यदि मेरी प्रजा के लोग, if my believers, यदि मेरे विश्वासी, if the church people, यदि कलीसिया के लोग, not your friends, और दोस्त नहीं, this privilege is not with your friends. ये सौभाग्य आपके दोस्तों के लिए नहीं है, It is not for your other people. ये आपके बाकी लोगों के लिए नहीं है, It is not for your relatives. ये आपके रिश्तेदारों के लिए नहीं है। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, revival will come in the nation if my people, जागृति देश में तब आएगी जब यदि मेरे प्रजा के लोग, if my people, यदि मेरे लोग, how many is here who is God's people? और आप में से कितने यहाँ पर हैं जो परमेश्वर के लोग हैं? So if my people, सो यदि मेरे लोग, and if they, and the people who are called by my name, और वो लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, are we called by the name of Jesus? क्या हम यीशु के नाम से बुलाए गए Are हैं? we the believer of Jesus? क्या हम यीशु के अनुयायी हैं? And then if they shall humble themselves, और उसके बाद वो कह रहा है कि यदि वो दीन होकर, if we humble ourselves, अगर हम अपने आप को दीन कर लें, revival will never come from the people who are not able to forgive. जागृति कभी उन लोगों के द्वारा नहीं आएगी जो माफ नहीं कर पा रहे If you're हैं। walking in hatred and bitterness, the revival will not come through our prayers. यदि आप नफरत और कड़वाहट में चल रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जागृति कभी नहीं आएगी। If we are living a double standard life, the revival will not come. यदि हम एक दोहरा जीवन जीते हैं तो जागृति कभी नहीं आएगी The हमारे revival जीवन will से। only come in the nation if we humble ourselves. जागृति तभी आएगी एक देश के अंदर जब हम अपने आप को दीन करेंगे। If bitter hearts pray, nothing will move. अगर कड़वे हृदय प्रार्थना करेंगे कुछ भी नहीं हिलेगा। We have to humble. हमें दीन होना है। Tell your neighbor, we have to be humble. अपने पड़ोसी को कहें हमें दीन होना है। We need to be humble. हमें दीन बनना है। We need to be humble. हमें दीन होना है। We need to be humble. हमें दीन होना है। What is the meaning of humbleness? दीनता का अर्थ क्या है? Forgiving each एक other, दूसरे को क्षमा करना, loving each एक other, दूसरे से प्रेम करना, coming out of our grudges, अपने गिले शिकवों से बाहर निकल जाना, coming out of our bitterness, अपनी कड़वाहट से बाहर आ जाना, coming out of the unforgiveness. माफ ना करने के हृदय से बाहर आ जाना। If we come out of all these, अगर हम इन सब बातों से बाहर आ and the जाएंगे Bible says, and you pray. और बाइबल कहती है तब तुम प्रार्थना करो। Don't pray if you're not humble. अगर आप नम्र नहीं है तो प्रार्थना मत करिए। Don't pray if you cannot forgive. अगर माफ नहीं कर सकते प्रार्थना मत करिए। Don't pray if you are bitter. अगर आप कड़वे हैं तो प्रार्थना मत करिए। Don't pray if you cannot forgive your enemies. अपने दुश्मनों को अगर माफ नहीं कर सकते तो प्रार्थना मत करिए। We have to pray only when we are able to forgive. हमें तभी प्रार्थना करनी है जब हम माफ कर पा रहे हैं। You are going in your prayer room, but you are going with a bitter heart, and you are going and trying to effect God's word. Nothing will change. If anybody has to do something, they have to first of all humble themselves. आप प्रार्थना के कमरे में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के सिंहासन में, स्वर्ग में कुछ भी नहीं हिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नम्र नहीं करेंगे परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। When you humble, जब आप नम्र करते हैं you अपने आप also को, leave your sins. आप अपने पापों को भी छोड़ते हैं। You also quit on your sins. आप अपने पापों को त्याग देते हैं। You say no to your sins. आप अपने पाप का इनकार करते हैं। I was teaching the worship team about the worship.
मैं आराधना टीम को आराधना के बारे में सिखा रहा था। Who is the worshipper? एक आराधक कौन है? Not the one who is singing song from here. वो नहीं जो यहाँ से गीत गाता है। We all are the हम worshippers. सभी आराधक हैं। The moment you say no to sin, you are a worshipper. जिस क्षण आप पाप का इनकार करते हैं, आप एक आराधक हैं। The moment you say no to the bad company, you are a जिस worshipper. क्षण आप बुरी संगति का इनकार करते हैं, आप एक आराधक हैं। The moment you say no to pornography, you are a जिस क्षण worshipper. आप अश्लील चित्र को देखने का इनकार करते हैं, आप एक आराधक हैं। The moment you say no to the liquor, you are a जिस क्षण worshipper. आप शराब का इनकार करते हैं, आप एक आराधक हैं। The moment you say no to the lies, you are a जिस worshipper. क्षण आप झूठ का इनकार करते हैं, आप एक आराधक हैं। The moment you say no to the bitterness, you are a जिस worshipper. क्षण आप कड़वाहट का इनकार कर देते हैं, आप एक आराधक हैं। You are not worshipper only for half an hour or 1 hour in the church, but you are a worshipper even in your daily life when you say no to sin, when you say no to the things that does not glorify God. आप केवल आधे घंटे और 1 घंटे के आराधक नहीं हैं, लेकिन आप कलीसिया वाले आराधक नहीं, लेकिन आप उस समय हर एक समय आराधक हैं जब आप पाप का इनकार करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप एक आराधक हैं। Are you listening, people क्या of आप सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? We are not worshippers just in the house of God and singing songs. हम केवल परमेश्वर के भवन में आकर आराधक नहीं बनते हैं कि हम गीत गाएं और आराधक बन गए। We are worshippers 24/7 when we say no to the world and the things of the world, and we maintain the standard of God, and we say God yes, and we say holiness yes, and we say to God's standard yes. The moment we say that, we become a Yes, worshipper, amen. and God is looking at the worshippers all 24/7. पर मैं हमें उस हर एक समय आराधक है। 24 घंटे 7 दिन हम एक आराधक हैं। जब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं, उसके नियम को हाँ कहते हैं, उसके स्तर को हाँ कहते हैं, पवित्रता को हाँ कहते हैं, हम हर एक समय आराधक हैं। Do not pray if you're not humble, अगर आप दीन नहीं है तो प्रार्थना मत करिए, because क्योंकि you will become religious if you do that. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धार्मिक बन जाएंगे। If you pray यदि आप प्रार्थना करेंगे without being humble, बिना अपने आप को दीन किए हुए, without forgiving, बिना किसी को माफ ना किए हुए, you'll become religious. आप धार्मिक बन जाएंगे। And Jesus is not a religion. और यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, He's a relation. वो एक रिश्ता है। We will become like Pharisees हम फरीसियों के जैसा बन जाएंगे if we do not forgive and pray. यदि हम माफ ना करें दूसरों को और उसके बाद प्रार्थना करें। I see people, मैं देखता हूं लोगों को, they pray वो प्रार्थना करते हैं and they have bitter hearts. और उनके दिल कड़वे हैं। They pray प्रार्थना करते हैं and they keep grudges. और उनके दिलों में गिले शिकवे भी हैं। They pray प्रार्थना भी करते हैं and they have ego in their और hearts. उनके दिल के अंदर अहंकार भी है। They pray प्रार्थना करते हैं and their attitude is so high. और उनका रवैया बहुत ही एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। I'm sorry to say, but you are not following Jesus. You're following some kind of religion and some kind of cult in your mind. और माफ करिए, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, आप एक धर्म के पीछे चल रहे हैं, एक प्रकार के रीति के पीछे चल रहे हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Hello? हेलो, Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Don't make Jesus religion. यीशु को धर्म मत बनाइए। It's a religious spirit. ये एक धार्मिक आत्मा है। Once it entered in your body, एक बार ये आपके शरीर में जब घुस गई once it entered in your life, और एक बार जब वो आपके जीवन में अगर घुस गई you are going to hell, I'm telling तो you. आप नरक चले जाएंगे। Nobody can stop that. कोई आपको नहीं रोक पाएगा। Fear the day you pray and not forgive people. डरे उस दिन से जब आप प्रार्थना भी करते हैं और दूसरों को माफ भी नहीं कर रहे हैं। Fear the day when you pray and sin also. डरे उस दिन से जब आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ में पाप भी कर रहे हैं। Fear the day when pornography and prayer goes together. उस दिन से डरे जब अश्लील चित्र को देखना और प्रार्थना दोनों एक साथ चलने लग गई हो। Fear the day when our hearts is filled with ego and pride and we are also praying. डरे उस दिन से जब हमारा दिल अहंकार और घमंड से भरा है लेकिन हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों?
And I'm telling you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, none of these prayers are accepted in heaven. स्वर्ग में इनमें से कोई भी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जाती है। It's a foolishness. ये मूर्खता है। We think I'm feeling the anointing. हमें लगता है कि हम अभिषेक महसूस कर रहे हैं। Oh, that's given to you. ये आपको दिया गया है। You can feel anytime you want. आप किसी भी समय महसूस करते हैं जब आपका मन हो। You think, oh, I've done my duty, I have prayed. आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। That's foolishness. ये मूर्खता है। The real prayer असली प्रार्थना will change your heart. वो आपके दिल को बदलेगी। The real prayer असली will प्रार्थना change your life. वो आपके जीवन को The बदलेगी। real prayer असली will प्रार्थना change and transform your वो heart. आपके दिल को परिवर्तित It will करेगी। change your personality. वो आपके व्यक्तित्व को It बदल will देगी। take you out of the वो ego. आपको अहंकार से बाहर निकाल And देगी। that's what he's saying. और यही वो कह रहा है, If my people यदि मेरे प्रजा के who are लोग called by my name, जो मेरे कहलाते if they हैं, humble themselves यदि वो दीन हो जाए and pray और प्रार्थना and करें seek my face और मेरे दर्शन के खोजी हो and turn from their wicked ways. और अपनी बुरी चाल से फिरे। Somebody say, turning from my wicked ways. कोई कहे मेरे बुरे चाल से फिरना। बोलिए. Now God knows one thing. अब परमेश्वर एक बात जानता है, Men have wicked ways. मनुष्य की चाल दुष्ट चाल है, Wicked ways. बुरी चाल है। What are the wicked ways? दुष्ट चाल क्या है? Now what is my wicked ways? और क्या कहने का मतलब है? What is my wicked मेरे way? कौन सी ऐसी चाल है जो बुरी है, जो दुष्टता वाली है? We all have different wicked ways. हम सभी की अलग अलग बुरी चाल हो सकती हैं। Maybe I'm egoistic. हो सकता है मैं अहंकार करता हूँ। Maybe I'm unforgiving. मैं माफ ना करने वाला व्यक्ति हूँ। Maybe I have pride हो issues. सकता है मेरे अंदर घमंड की परेशानी है। We all have different kind of wicked ways. हम सब की अलग अलग प्रकार की बुरी चाल होती Maybe है। my heart is bitter. हो सकता है मेरा दिल कड़वा हो। Maybe I am keeping hatred for somebody. शायद किसी के लिए मेरे अंदर नफरत है। What is my wicked ways? मेरी बुरी चाल कौन सी है? God says, परमेश्वर कहता है, if they do not turn, यदि वो ना फिरें I will not bring the तो revival. मैं जागृति नहीं लाऊंगा। I will not heal their land. मैं उनकी भूमि को ज्यों का त्यों नहीं करूंगा। I will not heal their family. मैं उनके परिवार को चंगा नहीं करूंगा। It is not my word, it is the word of God. ये मेरे शब्द नहीं है, परमेश्वर के शब्द हैं। God is saying, परमेश्वर कहता है, if my people यदि मेरे who are लोग called by my जो name, मेरे कहलाते हैं, first thing humble सबसे themselves, पहली बात वो अब नम्र second करें, seek my दूसरी face, बात दर्शन के खोजी हो, third turn from their wicked ways, और तीसरी बात वो बुरी चाल से फिर जाएं। then I will hear from और वो heaven. कहता है तब मैं स्वर्ग में से सुनूंगा। I will hear from heaven. मैं स्वर्ग से सुनूंगा। Who I hear? और किसको? Whom I hear? मैं किसको सुनूंगा? I hear the humble hearts. मैं नम्र और दीन दिलों को सुनूंगा। Whom do I hear? मैं क्या किसको सुनूंगा? I hear the people who turn from their wicked मैं ways. उसको सुनूंगा जो लोग अपनी बुरी चाल से फिर If जाएंगे। you're still bitter, यदि आप अभी भी कड़वे हैं, God is not answering our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को If जवाब you फिर still नहीं दे रहा have है। grudges, अभी भी आपके अंदर गिले शिकवे हैं। God is not answering your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है। God says, I can only hear if my people seek my face, humble themselves and turn from the wicked ways. परमेश्वर ये कहता है मैं तभी उनको सुनूंगा जब वो अपनी बुरी चाल से फिर जाएंगे और जब वो मेरे दर्शन के खोजी होंगे, नम्र करेंगे अपने आप को, And then I will forgive their sins. और तब मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा, And then I will heal their land. और तब मैं उनकी भूमि को चंगा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा में सोना नहीं है। फिर से आत्मा में बोलिए, सोना नहीं है। Don't sleep in the spirit. आत्मा में सोना नहीं है। Do not sleep in the spirit. आत्मा में ना सोएं। Prayer that brings revival must be deep and costly. जो प्रार्थना जागृति लेकर आएगी, उस प्रार्थना को कीमती और गहरी होना बहुत जरूरी है। How long you talk to Jesus? कितने लंबे समय तक आप यीशु से बात कर सकते I हैं? have been talking about the strong man in the Bible. बाइबल में मैं आपसे बात कर रहा था पिछले हफ्तों में बलवान मनुष्य के बारे में, And people have to bind the strong man. और लोगों को पहले बलवान मनुष्य को बांधना जरूरी है। And then only Jesus said you can plunder the house. और यीशु ने कहा कि तभी तुम उस घर को लूट पाओगे। There is a strong man in everyone's life. हर किसी के जीवन में एक बलवान मनुष्य है, And everybody has a strong man in a different way. और अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में वो बलवान मनुष्य हो सकता है। Some people have a strong man of addiction. और कुछ लोगों के जीवन में वो नशे का गुलाम और नशे का बलवान मनुष्य है। Some people have a strong man of fashion. कुछ लोगों के जीवन में बलवान मनुष्य उनके फैशन का है। Some people have a strong man of different kinds of sin. और कुछ लोगों के जीवन में उनके बलवान मनुष्य अलग अलग पाप का है। When your prayer is deep,
जब आपकी प्रार्थना गहरी है, you can bind this strong man. आप उस बलवान मनुष्य को बांध When your सकते हैं। prayer is costly, जब आपकी प्रार्थना कीमती है, I told you मैंने आपको बताया last week, पिछले हफ्ते में, praying normally is a normal prayer. साधारण प्रार्थना एक साधारण है। How you make your prayer costly? आप कैसे अपनी प्रार्थना को कीमती बनाते हैं? Early morning. सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना When करने पे, somebody prays early morning, जब कोई भोर में प्रार्थना करता है, they are making their prayer वो costly. अपनी प्रार्थना को कीमती बना रहा है। When somebody is praying in the night, जब कोई रात में प्रार्थना कर रहा है, Jesus used to pray whole night. यीशु पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। When you pray in the night, जब आप रात में प्रार्थना करते हैं, you are making your prayer deep and costly. आप अपनी प्रार्थना को गहरी बना रहे हैं और कीमती बना रहे हैं। Since fasting, उपवास से till now, अभी तक I am praying 3 times a day. मैं एक दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा हूँ। And on Thursday, और वीरवार के I दिन went in my room मैं अपने कमरे में गया to pray around 11 o'clock, 11:13 or 15. और लगभग 11:15 बजे या 11:30 बजे अपने प्रार्थना करने के लिए सुबह अपने कमरे में गया, And I came out at 5:30 in the और evening. मैं शाम को 5:30 बजे कमरे से बाहर आया, Slowly, और धीरे धीरे prayer is evaporating from churches. प्रार्थना कलिसियाओं से उड़ रही है, People गायब हो are रही more है। busy in working, लोग काम में ज्यादा व्यस्त हैं and they do not understand the power of prayer. और प्रार्थना की सामर्थ को हम नहीं समझ पा रहे My हैं। dear precious people of परमेश्वर God, के मेरे प्रिय लोगों, how deep your prayer is, आपकी प्रार्थना कितनी गहरी how है, costly your prayer is. आपकी प्रार्थना कितनी कीमती है। You want your family to be changed? आप चाहते हैं आपका परिवार बदल जाए, You want your children to be changed? आप चाहते हैं आपके बच्चे बदल जाएं, You want your environment to be आप changed? चाहते हैं आपका माहौल बदल जाए। Revival will not come through casual or shallow prayers. जागृति छोटी गहरी और लंबी प्रार्थनाओं के बिना नहीं आएगी, It will not come through shallow and casual prayers. और छोटी प्रार्थना और साधारण प्रार्थनाओं से बेदारी नहीं आने वाली। Our prayer once again must be burdened with prayer, must be burdened prayer. और हमारी प्रार्थना एक बार फिर से बोझ वाली प्रार्थना होनी जरूरी है। Our prayer must be a prayer of tears. हमारी प्रार्थनाएं आंसुओं वाली प्रार्थना होनी जरूरी है। We must have groanings in our prayer. हमारी प्रार्थनाओं में विलाप होना चाहिए। We must have fasting in our prayer. हमारी प्रार्थनाओं में उपवास होना चाहिए। God is looking for people who are grieved and who are crying for their families and their nation. परमेश्वर उन लोगों की तलाश कर रहा है जो अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए विलाप के साथ और आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। The self-sufficient will not pray. और आत्मसंतुष्ट लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। The self-satisfied will not pray. खुद में संतुष्टि रखने वाले लोग प्रार्थना नहीं The करेंगे। self-righteousness cannot pray. खुद में धर्मी कहलाने वाले लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। The true revival begins with personal repentance. सच्ची जागृति एक निजी मन फिराव से शुरू होती है। Once again, सच्ची जागृति निजी पश्चाताप से, मन फिराव से शुरू होती somebody है। say revival will begin when I will repent. कोई कहे जागृति तब शुरू होगी जब मैं मन फिराऊंगा। What is the prime message of the Bible? बाइबल का सबसे प्रमुख संदेश क्या है? What prophet preached throughout the भविष्यवक्ताओं ने Bible? पूरे समय में क्या प्रचार किया? Repentance. मन फिराओ। What did John the Baptist preach? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने क्या प्रचार किया? Repentance. मन फिराव का। What did Jesus preach? यीशु ने क्या प्रचार किया? Repentance. मन फिराओ। What did apostle preach? प्रेरितों ने क्या प्रचार किया? Repentance. मन फिराव The का। core message of the Bible is always repentance. बाइबल का प्रमुख संदेश हमेशा से मन फिराव रहा है। Repentance and repentance and मन repentance. फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। Revival will come into the church when people repent. जागृति कलीसिया में तब आएगी जब लोग मन फिराएंगे। Oh my dear precious people ओ of God. परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों, Revival does not start in a church building. जागृति कलीसिया की इमारत में शुरू नहीं होती है। Revival start in the heart. जागृति दिल में शुरू होती है। It starts in the heart. वो दिल में शुरू होती है। When you feel to pray. जब आप प्रार्थना करने का आपका मन करता है। When you say I am going to pray. जब आप कहते मैं प्रार्थना करूंगा। Just like you feel hungry for food. बिल्कुल जैसे आपको खाने की भूख लगती है। In the same way you start feeling hungry for God. वैसे ही आपको परमेश्वर की भूख लगनी शुरू हो जाती है। You want to pray in the day. आप दिन में प्रार्थना करने You का want मन to होता pray in है। the night. आपको मन होता है रात में प्रार्थना करने You का। want to pray in your office. आप अपने ऑफिस में प्रार्थना करना चाहते हैं। Every moment when you get time हर you एक want to क्षण pray. जब आपको समय मिलता है आप प्रार्थना करने के लिए दौड़ते हैं। It means the revival has इसका come. मतलब जागृति आ गई है। The revival has come. जागृति आ चुकी है। Not in the building first, इमारत में नहीं पहले, but in the heart first. लेकिन दिलों में पहले। Come on, somebody shout ओ, कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Praise the Lord.
Jesus said, यीशु ने कहा, if you want to plunder a house, यदि तुम एक घर को लूटना चाहते हो, first you go and bind the strong man, सबसे पहले तुम जाकर उस बलवान को बांधो, and then only you can plunder. और that. उसके बाद ही तुम उस घर को लूट पाओगे। Satan is holding our blessing. शैतान ने हमारी आशीषों को पकड़ा हुआ है, He is holding our healing. हमारी चंगाई उसने पकड़ रखी है, He is holding our prosperity. हमारी उन्नति उसने उसके हाथों में है, उसने पकड़ी हुई है। He doesn't want God's people to flourish. वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग उन्नति करें, फलवंत हों। What did he do with Job? वो उसने, अब देखिए अय्यूब के साथ क्या किया उसने। Job was the richest man. अय्यूब सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, He was a big man. वो एक बड़ा व्यक्ति था, But he took all his possession away. लेकिन सारी जायदाद उससे उसने ले ली। Who did it? किसने किया ये सब? Satan. शैतान ने। Satan is interested to make us poor. शैतान इच्छुक है कि वो हमें गरीब बनाए। He loves when we are poor. उसे बहुत अच्छा लगता है जब हम गरीबी में जीते हैं। He loves when we are helpless. उसे बहुत अच्छा लगता है जब हम मजबूर होते हैं, असहाय होते हैं। He loves when we are sick. उसे बहुत अच्छा लगता है जब हम बीमार रहते हैं। He loves when we are in pain. जब हम दर्द में होते हैं वो बहुत खुश होता है। We think our tongue has no power. Bible says our tongue has a power of life and death. हमें लगता है कि हमारी जुबान में कोई ताकत नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है हमारी जुबान में, हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु की ताकत है। जब आप दूसरों के लिए कड़वाहट रखेंगे वो आपको बीमार करेगी. Don't keep hatred. आप नफरत मत रखिए अंदर। हम नाराज हो सकते हैं, हम गुस्सा हो सकते हैं, बट हम कड़वे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कड़वाहट उस इंसान के प्रति अच्छा देखने को बंद कर देती है. We can be angry with our brothers and sisters. Bible allow that. बाइबल हमें अनुमति देती है कि भाई बहन के साथ हम गुस्सा कर सकते हैं, But we cannot be bitter against them. लेकिन हम उनके विरोध में उनके लिए कुछ कड़वाहट नहीं पाल सकते, Because bitterness क्योंकि कड़वाहट will stop you to see goodness in them. वो आपको रोक देगी कि आप उनके अंदर भलाई और अच्छाई को ना देखें। How many are with me? कितने लोग मेरे साथ में हैं, सुन Now, रहे हैं? come back, please come back. आइए हम वापस आएं। Somebody say, let's work. Let's work. Somebody say, let's work. Let's work. आइए हम काम करें। Amen. Amen. This is a job. ये काम है, Listening is a work. जो सुनना है वो एक काम है। You listen and you keep here. आप सुनते हैं और आप यहाँ पर रखते हैं, And you start that word of God. You allow that to filter and work on your life. और आप वो बातचीत करके आप वो परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि परमेश्वर आपके दिल को तराशे और छाने। So God is waiting for people परमेश्वर लोगों का इंतजार कर रहा है to turn from their sin. कि वो अपने पाप से फिर जाएं। We must repent of pride, prayerlessness, compromise and apathy. और हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने समझौते से बाहर आएं, अपने घमंड से बाहर आएं और अपने अहंकार से बाहर निकलें। Now my third point is, अब जो तीसरी बात है, God is not in hurry. परमेश्वर जल्दी में नहीं है, He is waiting for holy vessels. वो पवित्र बर्तनों का इंतजार कर रहा है। Aha. Come on. Hello. Yes, yes, hallelujah. Hello. Amen, amen. God is not in hurry. परमेश्वर जल्दी में नहीं है। Hello. क्या आप सुन रहे हैं? He has been waiting for holy vessels for decades, for years, for ages. वो सालों से, युगों से, दशक से वो पवित्र बर्तनों का इंतजार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Don't think God does not have option apart from me. और ये मत सोचिए कि परमेश्वर के पास मेरे अलावा बहुत सारे चुनाव विकल्प हैं। God is more concerned about the depth of a person than the activity of a man. परमेश्वर को चिंता है एक मनुष्य की गहराई के बारे में। परमेश्वर को एक मनुष्य के काम से ज्यादा परमेश्वर को उसकी गहराई के बारे में ज्यादा चिंता है। Once again. और एक बार फिर से सुनिए इस बात को। Hallelujah. हालेलुया। You are cleaning the floor. आप झाड़ू लगा रहे You हैं, are cleaning the washroom. आप वॉशरूम साफ कर रहे हैं, You are doing lot of things in the आप ministry. सेविकाई में अलग अलग काम कर रहे हैं, But God is saying something. लेकिन परमेश्वर कुछ कह रहा है। God is saying, I'm not more interested in your activity, परमेश्वर कहता है मैं मेरी इच्छा जो है वो तुम्हारे काम में नहीं है, but my interest is in your depth. लेकिन मेरी इच्छा तुम्हारी गहराई में है। I am more concerned about your depth. और तुम्हारी गहराई में मेरी ज्यादा चिंता है। My dear precious people of God, परमेश्वर के मेरे प्रियो, God will not entrust revival fire to the unclean and unprepared vessels. परमेश्वर अशुद्ध बर्तनों में, अपवित्र बर्तनों के द्वारा जागृति बेदारी नहीं लेकर आएगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? God cannot depend on the unclean
unclean vessel for the revival. परमेश्वर जागृति के लिए अशुद्ध बर्तनों पर निर्भर नहीं रह सकता। The character of the intercessor matters as much as the content of their prayers. और एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जो शब्द है उससे ज्यादा परमेश्वर एक मध्यस्थता करने वाले की ओर देखता है। Once again, the character of an intercessor matters as much as the content of their prayers. प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति है, उसके शब्दों से ज्यादा उसका चरित्र मायने रखता है परमेश्वर के लिए। यस यस। कई बार हमारा प्रार्थना का कंटेंट, प्रार्थना का शब्द बहुत ही अच्छा होता है, पर हम एक बात को ध्यान दें, हम चापलूसी लोगों की कर सकते हैं, खुदा की नहीं कर सकते। यस, हालेलुया। यस, प्रेज गॉड। यस, ग्लोरी। वो हम चापलूसी लोगों की कर सकते, खुदा की नहीं कर सकते। हम शब्दों से लोगों को खुश कर सकते हैं, खुदा को खुश नहीं कर सकते। We can do buttering with people, not with God. लोगों के साथ हम मक्खन लगा सकते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। We can impress people with our words, not God. लोगों को हम शब्दों से खुश कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? We cannot even please God with crocodile tears. और हम अपने मगरमच्छ वाले आंसुओं से भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। Even God knows यहाँ तक कि परमेश्वर भी जानता है our tears are real हमारे आंसू असली है or no. या फिर वो नकली है बस Are you दिखाने के listening? लिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? You know, most of the time when husband and wife they fight, they go to God and they cry, and Lord says, "Boy, they don't understand. He doesn't understand. She doesn't understand." और अधिकतर समय देखिए क्या होता है, लड़ाई झगड़ा जब पति पत्नी के बीच में होता है और वो जो पति पत्नी है वो प्रार्थना के लिए जाते हैं और परमेश्वर के सामने वो यही कहते हैं कि वो नहीं समझता, वो नहीं समझती। But God knows, लेकिन परमेश्वर जानता है because God understands the depth. क्योंकि परमेश्वर गहराई को समझता है। He is not looking the activity. वो काम को नहीं देख रहा है आपके, He is looking the depth. वो आपकी गहराई को देख रहा है। God knows. परमेश्वर जानता है। Sometimes husband may look like bad, कई बार पति बुरा दिखेगा but he is not that bad. लेकिन वो वैसा बुरा है नहीं। Sometimes somebody look bad. कई बार कोई व्यक्ति बुरा दिख रहा है, The activity may look bad, उसका हो सकता है काम शायद बुरा दिख रहा हो, but the depth is right. लेकिन जो गहराई है वो बिल्कुल सही Are है। you listening? क्या Are आप you सुन even रहे हैं? listening? God is not going to give revival fire to the unclean vessels. परमेश्वर अशुद्ध बर्तनों को जागृति वाली आग नहीं देने वाला। We cannot please God with our prayer content. हम अपने प्रार्थना के शब्दों से, प्रार्थना करने के तरीके से परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। There is only one way एक ही तरीका है to impress God, परमेश्वर को खुश करने का, to be like God, परमेश्वर के जैसा बनकर, to be like God, परमेश्वर के जैसा बन जाएं, to be like God. परमेश्वर के जैसा हम बन Forgive जाएं। as Jesus forgave. जैसे यीशु ने क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करें। Hallelujah. हालेलुया। Now the next thing is, अब अगली बात, revival praying is focused on God's glory, not our comfort. जागृति वाली जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की महिमा को देखती है, अपने आराम को नहीं। God's revival focus on God's glory, not our comfort. परमेश्वर की जो जागृति है वो परमेश्वर की महिमा की ओर देखती है, हमारे आराम को नहीं। Don't think power packed church means revival is here. ये मत सोचिए कि सामर्थ्य से भरी कलीसिया है तो इसका मतलब जागृति यहाँ पर है। No. नहीं नहीं नहीं, We are in the end days. हम अंत के दिनों में हैं। Many will go astray. बहुत से भटक जाएंगे। So don't think emotional feeling is revival. तो ये मत सोचिए भावनाओं में बहकर हाँ जागृति आ Don't गई think है। power packed church means ये revival. मत सोचिए सामर्थ्य यहाँ महसूस हो रही है तो जागृति यहाँ पर Then है। what is तो revival? जागृति क्या है? It is about God being glorified. और इसका मतलब है परमेश्वर की महिमा होना, God being glorified. परमेश्वर को महिमा मिलना। Hello. हेलो, Hello. क्या आप सुन रहे हैं? Hello.
Revival does not mean that all churches leave their churches and come to somebody's church. जागृति का मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपनी अपनी कलीसियाओं को छोड़ दें और वो एक कलीसिया में चले जाएं। Church hopping is not a revival. और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में कूदना फुदकना का मतलब जागृति नहीं है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I make a big church and with big screen and with so many things and everybody is leaving their churches and coming to my church is not a revival. मैंने एक बड़ी कलीसिया बना ली है, बड़ा हॉल मेरे पास है, मैंने बड़ी स्क्रीन्स लगा ली और सब लोग मेरे पास अलग अलग कलीसियाओं को छोड़कर आ रहे हैं, इसका मतलब जागृति आ गई है। No, it is not a revival. नहीं, ये जागृति नहीं है। What is revival? जागृति क्या है? New souls are added in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में नए आत्माएं बचाई जा रही The हैं new souls being saved, that is revival. और नए प्राण बचाए जा रहे हैं, ये है New जागृति। people coming to Christ is a revival. नए लोग मसीह को जान रहे हैं, ये है जागृति। Hallelujah. हालेलुया। And when God is glorified. और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है, ये है जागृति। Once again. एक बार फिर से Three things. तीन बातें। Number one. सबसे पहली In बात, revival, God is being glorified. जागृति में परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। Number two. दूसरी बात, Revival does not mean shift your church. जागृति का मतलब ये नहीं है कि अपनी कलीसिया में को छोड़कर किसी और में चले जाओ। Change your church. अपनी कलीसिया को बदल लो, Change your pastor. अपने पासवान को बदल लो। Revival means new souls being added to the kingdom of God. जागृति का अर्थ है नए आत्माओं नए प्राणों का बचाया जाना परमेश्वर के राज्य में। And the next thing is, और अगली जो बात है, it is church returning to holiness. और इसका मतलब जागृति का मतलब ये है कि कलीसिया पवित्रता में वापस आ जाए। When revival demands perseverance in prayer. और जागृति जो है वो मांग करती है प्रार्थना और धीरज की। True intercessors will not give up. They will pray for years. सच्चे मध्यस्थक वो कभी हार नहीं मानेंगे, वो सालों सालों तक प्रार्थना करते रहेंगे। Revival often comes after months or years of intense and hidden prayers. Intense and hidden prayers. Remember that. जागृति अक्सर कई महीनों और सालों की तीव्र और गहरी प्रार्थनाओं के बाद आती है। Hallelujah. हालेलुया। You don't have to announce people, I have been praying for you. आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। Pray in secret. गुप्त में प्रार्थना करें, Pray in hidden. गुप्त में रहस्य प्रार्थना करें, Pray for years. सालों तक प्रार्थना करते रहें। Pray a prayer of intense. एक तीव्र प्रार्थना करें, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करें। In the early church, शुरुआती कलीसिया में they waited for 10 days उन्होंने 10 दिन तक इंतजार किया for fire to fall down. आग नीचे उतरने के लिए। They didn't give 1 hour. Oh, no, nobody is coming. और फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है हम छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। They didn't wait for 1 day or 3 days. एक दिन 3 दिन तक उन्होंने इंतजार नहीं किया। They didn't even know for how many days they have to उन्हें wait. पता भी नहीं था कि हमें कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। We are reading 10 days because we are reading after them, but they didn't have any idea that how long they have to wait. हम 10 दिन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हम उसके बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय उनको नहीं मालूम था कि हमें कितने दिन तक रुकना पड़ेगा। They didn't know. They didn't have any idea. उनके पास कोई इस बात के लिए सोच भी नहीं थी, कल्पना नहीं थी। But they knew one thing. लेकिन वो एक बात जानते थे, Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के we are nobody. हम कुछ भी नहीं है। Our church is nobody. हमारी कलीसिया कुछ भी नहीं है। Our work is nobody. हमारा काम कुछ भी नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, don't you jump into the ministry without Holy Spirit. सेविकाई में बिना पवित्र आत्मा के तुम कदम भी मत रखना। Are you listening, people क्या of आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? They have waited for 10 days. उन्होंने 10 दिन तक इंतजार किया। Don't just pray once, tarry until heavens moves. और आप प्रार्थना करना तब तक बंद ना करें जब तक स्वर्ग ना हिल जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit is the fire behind revival. पवित्र आत्मा जागृति के पीछे की आग है। The Spirit is the one who convicts, awakens, fills and transforms. पवित्र आत्मा है जो लोगों को कायल करता है, मन फिराव का हृदय देता है और उन्हें बदलता है। Revival means aligning yourself with the Holy Spirit, not controlling the Holy Spirit. जागृति का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा को नियंत्रण ना करना, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ चलना और मेल खाना। Listen very carefully. सुनिएगा ध्यान से इस बात को। We must pray in the Spirit. हमें आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है। By the Spirit. आत्मा के द्वारा करना जरूरी है। And for the Spirit's और work. आत्मा के काम के लिए करना जरूरी Once again, है। एक बार फिर से we सुनिए। must pray in the Spirit. हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। We must pray by the हमें Spirit. आत्मा के द्वारा प्रार्थना करनी And है। we must pray for the Spirit's work. और हमें आत्मा के काम के लिए प्रार्थना करनी है। And the last thing I want to say और here. आखिरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, Revival praying is a warfare.
और जागृति वाली प्रार्थना एक मल्लयुद्ध है। When you pray for revival, जब आप जागृति के लिए प्रार्थना you are करते हैं, directly fighting to the आप Satan. सीधा शैतान से लड़ रहे हैं। Intercessor for revival means battling against the darkness, जागृति के लिए मध्यस्थता करने का मतलब है अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना fighting against the complacency, और उन सारे अंधकार के हाकिमों के खिलाफ में लड़ाई लड़ना, fighting against the spiritual blindness. आत्मिक अंधेपन के खिलाफ में लड़ाई को And लड़ना। it's not going to be easy, और ये आसान नहीं होने वाला, but it's going to be powerful. लेकिन ये और ताकतवर होगा। If we want the revival, यदि हम जागृति चाहते हैं we must be willing to come on our knees. तो हमें अपने घुटनों पर आने के लिए तैयार होना होगा। We have to win this battle on the हमें knees. अपने घुटनों पर आकर उस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। Revival prayer is not for the faint heart people. जागृति वाली प्रार्थना विश्वास में कमजोर लोगों के लिए नहीं है। Revival prayer is for the people who are desperate for God's move. जागृति की प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की चलन की इच्छा बहुत ज्यादा करते, भूख रखते I really हैं। want to tell you, और मैं आपको बताना चाहूँ, if you wait for prayer meeting, यदि आप प्रार्थना सभा में गए हैं, if you are waiting for prayer अगर आप meeting, एक प्रार्थना सभा का इंतजार कर रहे हैं, if you wait for prayer meetings, अगर आप प्रार्थना सभाओं का इंतजार करेंगे, अगर आप प्रार्थना सभाओं का इंतजार करते हैं और अगर आप प्रार्थना में जुड़ने का इंतजार करते हैं, अगर आप 11 बजे प्रार्थना में जुड़ते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल प्रेयर भी कर रहे हैं, अगर आप अपना प्रार्थना का समय दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना आपके द्वारा ही, रिवाइवल आपके द्वारा ही आएगा, क्योंकि जागृति जो है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, वो खाली पीली लोगों के द्वारा नहीं आएगी, वो सिर्फ उन लोगों के द्वारा आएगी जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, परमेश्वर के लिए प्यासे हैं। They are desperate for God and they are desperate for the Holy Spirit to move and revive the nation. और वो पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं और इस देश में परमेश्वर का काम देखने के लिए भूखे हैं। The secret of praying is praying in secret. प्रार्थना का रहस्य है रहस्य में प्रार्थना करना, And we have to come on our knees. और हमें अपने घुटनों पर आना है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, if you want to see God's move, यदि आप परमेश्वर के चलन को देखना if चाहते you want to हैं, see God moving in your house, यदि आप परमेश्वर को अपने घर में चलते हुए देखना चाहते if you want to हैं, see God moving in your office, अपने ऑफिस में देखना चाहते if हैं, you want to see God moving in your family, परमेश्वर को चलते हुए अपने परिवार में देखना चाहते teach हैं, your small children to read the Bible. छोटे बच्चों को सिखाएं बाइबल पढ़ना, Teach them to pray. उन्हें प्रार्थना करना Don't सिखाएं, give them phones and TV उन्हें remote. फोन और टीवी रिमोट मत दीजिए। I am fed up of all these मैं things. इन सब बातों से थक चुका हूँ। Our children are not like the children of the world. हमारे बच्चे दुनियावी बच्चों जैसे नहीं है। My parents pray so that they watch you and they pray. और माता पिता प्रार्थना करें ताकि बच्चे आपको देखकर प्रार्थना कर पाएं। If you want to see change in your family, in your nation, in your house, यदि आप एक बदलावट को अपने देश में, अपने परिवार में, अपने घर में देखना चाहते हैं, then there is only one way. तो एक ही तरीका Then there है, is only one तो way. एक ही तरीका है, Come on your knees. अपने घुटनों पर आ जाए, Come on your knees अपने घुटनों पर आ जाए and pray. और प्रार्थना And करें, pray. और प्रार्थना And करें, pray. और प्रार्थना And करें, pray. प्रार्थना When you करें, pray, प्रार्थना God will करें, move. परमेश्वर चलेगा, God will move. परमेश्वर God will चलेगा, change. परमेश्वर बदलेगा, God will change the nation. परमेश्वर देश बदल God देगा, will change the house. परमेश्वर घर बदल God देगा, will change the families. परमेश्वर परिवार बदल देगा, God will change the churches. परमेश्वर कलीसियाओं को बदल देगा, God will move and everything will change. परमेश्वर जब चलेगा तब सब कुछ बदल And जाएगा Satan will be defeated. और शैतान हार जाएगा, He will be defeated on his face. वो हार जाएगा अपने He मुंह के will बल, fall on his face. वो अपने मुंह के बल गिर जाएगा। There is no sickness. ये बीमारी नहीं There will है be there will be no pain. और कोई दर्द नहीं रहेगा, There कोई will be बीमारी no नहीं रहेगी, infirmities. कोई निर्बलताएं नहीं There will be रहेगी, no defeat.